صلوا عليه ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ کے لیے دو عذر ہے۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ اور ایک وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو، پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح مؤدب بنائے، اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے دو عذر ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 11۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب ان کا یہ طرز عمل ہوگا تو انہوں نے حدود اسلام کے علاوہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ بخاری مسلم۔ البتہ امام مسلم نے حدود اسلام کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 12۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا جباہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمہ کو نہ توڑو۔ مشکات شریف حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 14۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ مشکات شریف حدیث نمبر 15۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، اہل نزدی سے پریشان حال بکھرے بالوں والا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے۔
लेकिन हम उसकी बात नहीं समझ रहे थे हत्ता कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब हुआ और वह इस्लाम के मुतालिक पूछने लगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में 5 नमाजें। उसने अर्ज किया, क्या इसके अलावा भी कोई चीज मुझ पर फर्ज है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तुम नफिल पढ़ो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और माह रमजान के रोजे। उसने पूछा, क्या इसके अलावा भी कोई चीज मुझ पर लाजिम है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आला यह कि तुम नफली रोज रखो। रावी बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे ज़कात के मुतालिक बताया तो उसने कहा, क्या इसके अलावा कोई चीज मुझ पर फर्ज है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आला यह कि तुम नफली सदके करो। रावी बयान करते हैं, वह आदमी यह कहते हुए वापस चला गया, अल्लाह की कसम, मैं इसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो वो कामयाब हो गया। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 16। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि जब अब्दुल कैस का वफद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन लोग हैं या कौन सा वफद है? उन्होंने अर्ज किया, हम रबिया किबले के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम या वफद? खुशामदीद। तुम कुशादा जगह आए, तुम रुस्वा हुए ना नादिम। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम सिर्फ हुर्मत वाले महीने में आपकी खिदमत में हाजिर हो सकते हैं। हमारे और आपके माबीन मुजुर के कुफ्फर का ये कबीला आबाद है। आप किसी फैसले किन अमर के मुतालिक हुक्म फरमा दे ताकि हम अपने चेले साथियों को इसके मुतालिक बताएं और हम सब इसकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे मशरूबात के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने उन्हें 4 चीज़ों के मुतालिक उन्हें हुक्म फरमाया और 4 चीज़ों से उन्हें मना फरमाया। आपने एक अल्लाह पर ईमान लाने के मुतालिक उन्हें हुक्म दिया, फरमाया, क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने से क्या मुराद है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करो। और आपने उन्हें 4 चीज़ों से मना फरमाया। आपने बड़े मटकू, गढ़ों से बने हुए प्यालों, लकड़ी से तराशे हुए लगन और तारकोल से रंगे हुए रोगनी बर्तनों से मना फरमाया और फरमाया, उन्हें याद रखो और अपने चेले साथियों को इनके मुतलिक बता दो। बुखारी मुस्लिम। हदीस के अल्फाज बुखारी के हैं। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 17। इबादह बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जबकि सहाबाए इकराम की एक जमात आपके इर्द गिर्द थी, फरमाया, तुम उस बात पर मेरी बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, तुम चोरी करोगे ना जिना करोगे,
तुम अपनी औलाद को कत्ल करोगे, ना अपनी तरफ से किसी पर बोहतान लगाओगे और ना ही मारूफ में नाफरमानी करोगे। बस तुम में से जो ये अहेड वफा करेगा तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने उनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया और उसे दुनिया में उसकी सजा मिल गई तो उसके लिए कफ़ारा है, और जिसने इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब किया फिर अल्लाह ने उसकी पर्दापोशी फरमाई तो उसका मुआमला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर वो चाहे तो उसे दरगुजर फरमाए और अगर चाहे तो उसे सजा दे, बस हमने उस पर आपकी बैत कर ली। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 18। अबू खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद उल अधा या ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह तशरीफ लाए तो आप खवातीन के पास से गुजरे तो फरमाया, खवातीन की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुम्हारी अक्सरियत देखी है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, किस वजह से? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान ताम ज्यादा करती हो और खाविंद की ना शुक्रिया करती हो। मैं तुमसे ज्यादा किसी को दीन और अक्ल में नुस्ख रखने के बावजूद पुख्ता राय मर्द की अक्ल को ले जाने वाला नहीं पाया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे दीन और हमारी अक्ल का क्या नुकसान है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निफ्स नहीं? उन्होंने कहा, जी हाँ। क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उसकी अकल का नुस्ख है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या जब इसे हैज आता हो तो उस वक्त वो नमाज और रोज़ा ज़कात नहीं करती? उन्होंने अर्ज किया, क्यों नहीं, ऐसे ही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह उसके दीन के नुक्स में से हैं। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 19। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम ने मेरी तकजीब की हालांकि यह उसके लिए मुनासिब नहीं, और उसने मुझे बुरा भला कहा हालांकि यह उसके लायक नहीं था। रहा उसका मुझे झुठलाना तो वह इसका यह कहना है कि वह मुझे दोबारा पैदा नहीं करेगा जैसे उसने मुझे शुरू में पैदा किया था। हालांकि पहली बार पैदा करना मेरे लिए दोबारा पैदा करने से ज्यादा आसान नहीं। और रहा उसका मुझे बुरा भला कहना तो वो उसका यह कहना है, अल्लाह की औलाद है, हालांकि मैं यकता बेनियाज हूँ जिसकी औलाद हैं, ना वालिदैन और ना ही कोई मेरा हमसिर है। मिशकात शरीफ हदीस नंबर 20। सवाबे जारिया के लिए वीडियो शेयर करें,